Good morning, students. Today we are going to discuss the exercise of chapter number 15, that is some natural phenomena. And the exercise begins with the question number 1, that is, which of the following cannot be charged, जैसे charge, easily by friction. Option A, plastic scale. Number 2, a copper rod. C, an inflated balloon. D, a woolen cloth. Now you can see this is the plastic scale, this is insulator, this is also insulator, and the fourth one is also insulator. So which cannot be charged? So there is a one metal, that is copper rod. Actually, copper rod conduct the electricity which is produced by the friction. So the option B is the correct answer. Question number 2. When a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod and the cloth both acquire positive charge. Becomes positively charged while the cloth has a negative charge. And the cloth both acquire negative charge because becomes negatively charged while the cloth has the positive charge. Now which should be the correct answer? It is B. Becomes positively charged while the cloth has negative charge. So option B is correct in this question, right? Now question number 3. This is true-false question. Some statements will be there. You have to state that it is true or false, right? So question number 3, the first part, A part, like charges attracts each other. It means in this statement states that positive charges attract each other and negative charges also attract each other, which is false. The answer is false. Since the like charges repel each other, not attract, right? जैसा पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव को रिपेल करता है, तो यहाँ पे ये जो अट्रैक्ट वर्ड है ये गलत है, यानी फॉल्स हो गया. बी स्टेटमेंट, a charged glass rod attracts the charged plastic straw. Glass rod which is charged and the plastic rod is also charged. These are attract each other. That is true, right? Now question number C part of this question. Lightning conductor cannot protect a building from the lightning. Lightning conductor cannot protect a building from lightning. It is false. The lightning conductor protect the building, so it is false. Earthquake can be predicted in advance. What is this? This is false. So the answers are false, true, false and false, right? The third and fourth statement is also false, right? Now question number 4. Sometimes a cracking sound is heard while taking off a sweater during winters. आप देखते हैं कि सर्दियों के टाइम पे जब हम स्वेटर्स को निकालते हैं बेटा, तो क्रैकलिंग साउंड सी सुनाई देती है. आपने देखा होगा इन अ डार्क रूम व्हेन वी वेयर ऑफ द स्वेटर सम लाइटनिंग अकर्स, है ना? क्यों होता है? क्योंकि देयर इज अ फ्रिक्शन एंड ड्यू टू फ्रिक्शनल चार्जेस लाइट प्रोड्यूस एंड विद द लाइट देयर इज अ क्रैकलिंग साउंड. ठीक है ना? तो क्यों होता है ऐसा? यू हैव टू एक्सप्लेन इट. नाउ द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस बिटवीन द बॉडी एंड द स्वेटर. व्हेन वी रिमूव द स्वेटर देयर इज अ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन बॉडी एंड द स्वेटर ड्यू टू द friction. It means charges are producing. At the time of electric discharge,
some energy is released. In this case, energy is released in the form of crackling sound, right? तो साउंड के साथ जो है, हल्की से साउंड के साथ लाइट भी आपको दिखाई देती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई ए चार्ज बॉडी लूजेज इट्स चार्ज व्हेन वी टच इट विद आवर हैंड। कोई भी चार्ज बॉडी है, जैसे आप इलेक्ट्रोस्कोप को देखते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप के मेटेलिक कैप को अगर आप चार्ज देते हैं तो गोल्ड लीव्स जो है वो रिपेल करती है, लेकिन जब हम उसे हाथ से टच कर देते हैं तो चार्ज खत्म हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? वी हैव टू एक्सप्लेन इट। एक्चुअली व्हाट हैपन्स, द चार्ज जो है वो हमारी बॉडी से होते हुए अर्थ को चला जाता है ना, और अर्थ को जाने के बाद उस पे हम देखते हैं बॉडी पे चार्ज लूज कर जाता। द ह्यूमन बॉडी is conductor of electricity. Human body is also a good conductor of electricity. When a charged body is touched with hand, our body conduct its charges to the earth. Hence, by this way, charged body loses its charge. ठीक है ना? जैसे यहाँ पे मान लिया कोई एक कंडक्टिंग बॉडी है, इस पे आपने चार्ज दे दी, है ना, तो दिस चार्ज spreads over the conductor. When we touch it, तो it goes to the earth. ये अर्थ को चला जाता है, तो this charge transfer to the earth. और जब ये चार्ज अर्थ को चला जाएगा तो its charge becomes zero. तो इसका जो चार्ज होता है वो जीरो हो जाता है, नहीं न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है। Now question number 6, name the scale on which the destructive energy of an earthquake is measured. ठीक है ना, आपको वो स्केल का नाम बताना है जिससे अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। एन अर्थक्वेक मेजर 3 ऑन दिस स्केल। ठीक है ना, उस स्केल पे 3 नोट किया गया जो मेजरमेंट था। वुड इट बी रिकॉर्डेड बाय द सिस्मोग्राफ? क्या सिस्मोग्राफ इसको रिकॉर्ड कर पाएगा? इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज? क्या इससे बहुत ज्यादा डैमेज होगा प्रॉपर्टी को या फिर ह्यूमन लाइफ को, अगर मेजरमेंट जो है वो 3 है? तो आपको इसमें 4 चीजें बतानी है। यू हैव टू स्टेट द नेम ऑफ द स्केल। नंबर 2, आपको ये बताना है कि अर्थक्वेक अगर 3 हुआ तो क्या वो सिस्मोग्राफ उसे रिकॉर्ड कर पाएगा? और तीसरी और आखिरी बात कि क्या इतने में अर्थक्वेक पे कोई डैमेज होगा? तो आंसर इज द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ रिक्टर स्केल। तो दिस इज द नेम ऑफ द स्केल, रिक्टर स्केल। ठीक, यस, इट वुड बी रिकॉर्डेड बाय द सिस्मोग्राफ बिकॉज दिस इज द स्केल हैविंग द रीडिंग फ्रॉम 1 to 10। जो सिस्मोग्राफ होता है उसमें रीडिंग्स होती है 1 से लेकर 10 तक, 1 to 10। जैसे थर्मोमीटर है, अब बात करें अगर हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, तो उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के डिवीजन होते हैं नॉर्मल थर्मोमीटर। इसी तरीके से सेस्मोग्राफ में जो रीडिंग्स होती है 1 से 10 तक होती है। तो 1 से लेकर 10 तक का जितना भी बड़ा अर्थक्वेक आएगा या छोटा अर्थक्वेक आएगा उसको ये मेजर करेगा। ठीक, अब तीसरे पार्ट में वो कह रहे हैं कि अगर ये 3 स्केल हुआ यानी 3 की मेजरमेंट हुई, तो इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज? क्या बहुत ज्यादा नुकसान होगा? नो, इट इज नॉट लाइकली टू कॉज मच डैमेज एज अर्थक्वेक हैज द मैग्नीट्यूड हायर देन 5 इज कंसीडर्ड टू बी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। देखिए, अगर अर्थक्वेक का पिक की रीडिंग जो है 5 या 5 से ज्यादा आती है, 5 और 5 से ज्यादा, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन क्योंकि ये स्केल जो है वो आपको मेजर करके दे रहा है 3, तो इसका मतलब अगर 3 की मेजरमेंट है तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो चाहे प्रॉपर्टी हो, उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। नुकसान तो पहुंचेगा लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया नो, इट इज लाइकली टू कॉज
much damage as earthquake magnitude has higher than 5 as considered destructive in nature। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम दूसरे लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।